Hello students, this is Hari from English classes. Welcome to my YouTube channel. Today my topic is how to tell wild animals from a standard 10th, and this is fourth poem of your English literature book from First Flight. So first of all we'll discuss about the poet, then we'll discuss about the introduction to the poem, and finally we'll discuss about the explanations of this poem. So let us see about the poet. Okay guys. So Caroline Wells was born in America in 1862. कैरोलिन वेल्स का जन्म अमेरिका की जगह में हुआ था 1862 ईस्वी में, एंड सी डैड इन 1942, और उनका निधन 1942 ईस्वी में हुआ था गाइस. सी वॉज फ्रॉम अमेरिका एंड सी वॉज अमेरिकन पोएट एज वेल एज सी वॉज अमेरिकन राइटर. वह अमेरिकन कवि थी और वह एक अमेरिकन लेखिका भी थी. सी रॉट मोर देन 170 बुक्स. उन्होंने करीबन 170 किताबें लिख दी. During the first 10 years of her career, when she started to pass her career in the field of poet or the writer, okay, so she wrote 170 books during the 10 years, and then after she started to focus on poetry, humor or the children books. Okay, she is still remembered as the writer of the light verse. उन्हें अभी भी writer of the light verse के नाम से भी जाना जाता है. So now we are just going to discuss about the introduction to the poem guys. So that what is the mean of the introduction to the lesson. Okay. How to Tell Wild Animals is a humorous poem written by Caroline Wells. यह कविता जो How to Tell Wild Animals है, इसे एक humorous poem के रूप में लिखा गया है कैरोलिन वेल्स के द्वारा. It shows us the poet's love for wildlife. यह हमें बताता है, यह हमें दिखाता है कि कवि का कितना ज़्यादा प्यार उन सारे जानवरों के प्रति है जो जंगलों में रहते हैं. द एशियन लायन, द बंगाल टाइगर, द लेपर्ड, द बियर, द क्रोकोडाइल एंड अदर वाइल्ड क्रिएचर्स आर डिस्क्राइब्ड इन अ हाईली अम्यूजिंग मैनर. She expressed here that how does she love with wild animals. Okay, and she has given a lot of the examples such as Asian lion, Bengal tiger, leopard, bear and the crocodile, and many more animals which have been just given in this textbook guys. Okay, and she has written also in highly manner about these animals. It means she loves too much. Okay, we come to know about the features of various animals through this delightful poem. Okay, with the help of delightful poem we can also know and we can identify some of the animals, okay, because of their characteristics, because of their merits, because of their other things, right? So the poem is informative as well as entertaining. ये जो कविता है यह इंफॉर्मेटिव रूप में है और इसे इंटरटेनिंग के रूप में भी लिखा गया है. So now we will discuss about the explanations of the poem. So now we are just going to discuss about the explanations of our first stanza students. So first of all we will see the difficulties words of this lesson, that is of first stanza. By chance. By chance means accidentally, यानी कि संयोगवश से. Now we will see the next word, that is advance. Advance means proceed. Proceed का मतलब क्या होता है, पहले से, right? टाउनी बीस्ट. टाउनी बीस्ट का मतलब होता है कैसा प्रकार का एनिमल जो कलर में भूरा और आपका येलो हो, दैट इज द ब्राउनिश येलो, राइट? नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज हियर रॉर्स. रॉर्स का मतलब होता है खूंखार तरीके से या भयंकर तरीके से दहाड़ मारना, जो कि लोगों को डराने का प्रयास करना, दैट इज द रॉर्स. एंड द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज द फाइनल वर्ड ऑफ दिस स्टैंजा नंबर 1, दैट इज अ डाइन. डाइन का मतलब होता है स्टूडेंट्स dying यानी कि मरना, राइट? तो वी आर जस्ट गोइंग टू नाउ डिस्कस अबाउट द स्टैंजा नंबर 1. इफ ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. Students, the poet wants to make us understand, and the poet wants to describe about the Asian lion in the stanza number 1. Suppose you are just going to anywhere else in the forest side, in the east side of the forest, right? And suddenly you are interacting with an animal that is the Asian lion. You are just not knowing that is Asian lion or the another lion is that, right? But you are just trying to interact there. Okay, now if there should to you advance a large and tawny beast,
Suppose there is an animal and that is in front of you in advance and he is trying to roar. He is trying to roar front of you all. He is trying to roar front of you all. मतलब वह आपके सामने तेजी से दहाड़ने का प्रयास कर रहा हो, एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल और टाउनी बीस्ट हो। मतलब उसका जो बॉडी है काफ़ी ज़्यादा विशाल है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और भूरे कलर का है और साथ साथ में मतलब येलो कलर में भी है, ठीक है। और वह एनिमल आप पे दहाड़ने का प्रयास कर रहा हो और दहाड़ने से अगर आप मर जा रहे हैं, मतलब एक ऐसी कंडीशंस में आ जाना मानो कि आप मर गए हो, ठीक है, तो you will know it is the Asian lion. At that time you will be able to identify that it is the Asian lion. तो कभी यहाँ समझाना चाहती है कि अगर आप किसी जंगल में प्रवेश किए हैं पूरब की तरफ और वहाँ संयोगवश एक ऐसे मतलब एनिमल से मुलाकात हो जाता है जो बहुत ही विशाल हो, उनका बॉडी काफ़ी ज़्यादा भूरा और पीला कलर का हो, अगर वह तेज़ी से दहाड़ने का प्रयास करता है और उस दहाड़ के कारण से, उस दहाड़ के डर से अगर आपका डेथ हो जाता है, अगर आप मर जा रहे हो, तो आप उनको आइडेंटिफाई कर लोगे कि यह आपका एशियन लायन है। So students, here we have just discussed about the explanations as well as the difficulties words. Now we are just moving for the next stanza, that is the number 2 students. Okay, now students, we will see the stanza number 2, that is here. Or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you. रोमिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वैंडरिंग करना। जैसा कि आप यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिस्ट में आप देख सकते हैं, रोमिंग का मतलब होता है वैंडरिंग करना, राइट। नोबल, नोबल का मतलब होता है जेंटल, बहुत ही ज़्यादा विनम्र बनना। विल्ड बिस्ट, बिस्ट का मतलब होता है एक ऐसे प्रकार का जानवर जो ज़्यादातर जंगल में रहता हो, दैट इज कॉल्ड विल्ड बिस्ट, राइट। ग्रिट्स, ग्रिट्स का मतलब होता है स्वागत करना स्टूडेंट्स। विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स का मतलब होता है टाइगर के ऊपर में जो ब्लैक ब्लैक कलर का जो धारियां बनी हुई है, दैट इज स्ट्राइप्स। ऑन अ येलो ग्राउंड, यहाँ पे येलो ग्राउंड कहने का मतलब है कि जो टाइगर का जो बॉडी के ऊपर में जो आपका पीला कलर का जो बैकग्राउंड है, ठीक है, उसे ही बताया गया येलो ग्राउंड। जस्ट नोटिस इफ ही एट्स यू, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू अर्न द बंगाल टाइगर इज डिसर्न। So now the poet wants to make us understand, and she is explaining about the Bengal tiger in this stanza number 2. Suppose you are roaming here and there in the forest side, okay, and suddenly an animal comes front of you and he is entering, he is appearing front of you all as gentle, okay, that is wild beast, and he is trying to greet you. It means you will able to understand, and he has a black stripes on a yellow ground, okay, उनके शरीर के ऊपर मतलब एक ब्लैक कलर का, काले कलर का स्ट्राइप्स बना हुआ हो, मतलब पीले बैकग्राउंड पे। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, एंड यू विल हैव टू ट्राई टू नोटिस एट दैट टाइम टू द पर्टिकुलर एनिमल विच इज फ्रंट ऑफ यू ऑल, राइट। सो सपोज ही ईट्स यू, अगर वह आपको खाने का प्रयास करता है, then the simple rule may help you, मतलब with the help of this rule मतलब we can identify that it is the Bengal tiger, okay। Now student, we will discuss about the next stanza, that is stanza number 3, because we have just seen already that is the stanza number 1 and 2, and also we have just seen the difficulties words students. Now we will see the stanza number 3. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has lapped on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with land, he will only lap and lap again, students. So students, here we just trying to know that पोएट हैज़ अ लाइसेंस, मतलब जितने भी प्रकार के कवि जो होते हैं उन सारे कवि के पास उनके पास लाइसेंस होते हैं। वह अपने मन चाहे तरीके से वर्ड को जैसा चाहे वैसा वो यूज़ कर सकते हैं, वर्ड को वो मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास लाइसेंस होता है। सो इन दिस स्टैंजा नंबर 3 वी विल सी दैट सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन जस्ट कंप्लीटली चेंज्ड एंड शी हैज डिस्क्राइब्ड दीज आर द वर्ड्स, राइट। सो इफ अ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ, स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है वॉकिंग कैजुअली, राइट, मतलब एक ऐसे प्रकार से कैजुअली तरीके से वॉकिंग करना, ठीक है। अ बीस्ट यू व्यू, और अगर आप एक ऐसे एनिमल को देख पाते हैं हुज हाइड,
विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, ठीक है, जिसके बॉडी पे मतलब छोटे छोटे काले कलर के धब्बे जैसे मतलब स्पॉट्स बने हुए हैं, वो छिपा हुआ है। एज सुन एज ही हैज लैप्ड ऑन यू, लैप का मतलब होता है उछलना। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे प्रयास करेंगे कि जो लैप जो वर्ड है वो लीप का वर्ड है, लीप का मतलब होता है उछलना, एंड लेफ्ट इज अ विटू ऑफ द लीप। यहाँ पे एक LEA को मिसिंग किया गया है, जो कि पोएट के पास लाइसेंस है और उन्होंने यूज करी है लेफ्ट ऑन यू। यू विल नो इट इज द लेपर्ड, 12 do no good to roar with land, he will only lap and lap again. Okay students, now we will see if a stalling forth a beast you view whose hide with spots is peppered। अगर आप इधर उधर कहीं टहल रहे हैं, अगर आप एक ऐसे प्रकार के एनिमल्स को देख ले रहे हैं जिनके बॉडी के स्किन पे मतलब एक काले कलर का धब्बा बना हुआ हो और वह धब्बा अपने बॉडी के अंदर में वो छिपा करके रखा हो, पेपर्ड, पेपर्ड का मतलब होता है हेयर, इट मीन्स स्पॉट्स, एक धब्बा, काले कलर का धब्बा, राइट। फोर्थ का मतलब होता है स्टूडेंट्स फॉरवर्ड, एंड हाइड का मतलब होता है एनिमल का जो स्किन होता है उसे कहते हैं हाइड। यहाँ पे लेफ्ट का मतलब होता है जंप टूवर्ड समवन, किसी के सामने या किसी के फ्रंट में जंप करना। सो इफ यू आर विजिटिंग एंड इफ यू आर वॉकिंग हियर एंड देयर एंड सपोज यू आर जस्ट ट्राइंग टू सी एन एनिमल इन दैट ऑफ द प्लेस वेयर यू आर, whose hide with spots is peppered, मतलब एक ऐसे एनिमल को देख रहे हैं जिनके बॉडी पे मतलब एक काफ़ी कलर मतलब ब्लैक कलर का धब्बे बने हुए हो और उस धब्बे को छिपाया जा रहा है। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, okay, you will know it is the leopard, and suppose the animal which is front of you and he is trying to leap on you, it means you will be understand that it is leopard, ठीक है। अगर वह एनिमल आप पे मतलब उछलने का प्रयास कर रहा हो, जंप करने का प्रयास कर रहा हो, आपको अटैक करने का प्रयास कर रहा हो, तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि यहाँ जो क्या कर रहा है वो आप पे हमला करना चाह रहा है। Twill do no good to roar with pain, he will only lap and lap again, मतलब अगर आप उसके सामने रोइएगा, अगर आप उनके सामने बिलाप कीजिएगा, अगर आपको उनके सामने किसी भी प्रकार का शोक भी मनाइएगा, then that animal is just not going to ignore you, definitely he will try to attack, either you will weep or do something else. So the leopard is not understanding that the another people who is front of me, what does he want and what does he want to do. So he is just not going to entertain, he is not going to understand that of the thing. So student, here we have just seen the third stanza। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक जंगल में इधर उधर घूम रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं और आपके सामने एक ऐसा प्रकार का एनिमल है जिनके बॉडी पे काले कलर का मतलब स्पॉट्स बना हुआ, उस स्पॉट्स को छिपाया जा रहा है, अगर वह जानवर आपके सामने अटैक कर रहा हो, आप पे उछलना चाह रहा हो, आप पे जंप करके अटैक करना चाह रहा हो, और तो आप उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यह एक लेपर्ड है, ठीक है। और अगर आप उनसे भागिएगा, अगर उनके सामने आप पैनिंग कीजिएगा, दुख मनाइएगा, शोक विलाप करोगे, तो वह आपको मतलब इग्नोर नहीं करने वाला है, वो आप पे अटैक करेगा। और वो अटैक कैसे करेगा? ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वह बार बार आप पे उछाल मारेगा और वो आपको अटैक करेगा स्टूडेंट। सो नाउ हियर वी हैव जस्ट सीन द थर्ड स्टैंजा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट स्टैंजा, दैट इज नंबर 4. So the fourth stanza is here student. You are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. So first of all we will see the difficulties word yard. Yard का मतलब होता है मतलब घर का आंगन, जो घर में एक बड़ा सा आंगन होता है, दैट इज अ यार्ड, राइट। कैरेस का मतलब होता है कैसे प्रकार से टच करना, बहुत ही ज़्यादा जेंटली टच करना, जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्यारापन मतलब प्यारपन उभरता हो, दैट इज़ अ कैरेस, अ जेंटल टच। सो यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, you meet a creature there. Suppose you are just visiting and you are just walking in your yard of your house and suddenly you see a creature that is a completely different, okay, front of you, which is there, right?
who hugs you very very hard, be sure it is a bear, and suddenly that animals comes to you and he tries to hugs you, ठीक है, वह आपको हग करना चाह रहा हो, काफ़ी आपको टाइट से पकड़ लिया हो और आपके बॉडी पे ऐसे टच करता हो मानो कि आपके बॉडी का जो बाल होता है वो काफ़ी ऊपर की तरफ उभर जाए, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेज। अगर आपको डाउट लगता है, इफ यू आर जस्ट नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट विच एनिमल इज दिस हु इज जस्ट ट्राइंग टू हग मी, हु इज जस्ट ट्राइंग टू हग मी टाइटली, at that time, okay, at that time we will have to understand here that he will give you just one more caress। मतलब एक बार फिर से वो जेंटली तरीके से, प्यार तरीके से वो आपके बॉडी को टच करेगा, ओके। तो यहाँ पे कभी वो अपने इच्छा को जाहिर की है उस एनिमल के प्रति, उस वाइल्ड एनिमल के प्रति, लेकिन आपको इस तरह का प्रैक्टिकल करना कभी नहीं है, अदरवाइज इट विल बी रिस्की फॉर यू। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्यार से मुझे टच करेगा या जेंटली तरीके से टच करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, दैट इज़ अ राइट, बट वी आर जस्ट नॉट गोइंग टू practical do these things, we are just not going to practical these things, right? So now a student will discuss the next stanza, that is stanza number 5. Stanza number 5 is there. Through to Disney guys, beast of prey, a novice might nonplus, the crocodile you always me, tell from the hyena thus, hyenas come with merry smile, but if they weep they are crocodiles. Thou to Disney guys, beast of prey, a novice might nonplus. डिस्नी गाइस का मतलब दोनों के बीच में एक डिफरेंशिएट करना, मतलब दोनों के बीच में एक अंतर बनाना, दैट इज अ डिस्नी गाइस। नाउ बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब होता है एनी एनिमल्स दैट हंट्स अदर एनिमल्स फॉर फूड, एक ऐसे प्रकार का एनिमल जो दूसरे एनिमल को मारता हो अपने भोजन के लिए, दैट इज अ बीस्ट ऑफ प्रे। नॉविस, नॉविस का मतलब क्या होता है, समवन न्यू टू जॉब, मतलब एक ऐसे प्रकार का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति या कोई भी एनिमल जो एक नए जॉब की तलाश में हो, दैट इज अ नॉविस। एंड नॉन प्लस का मतलब होता है बी कंफ्यूज्ड, मतलब कंफ्यूज कर जाना, ओके। सो दो टू डिस्नी गाइस, बीस्ट ऑफ प्रे, अ नॉविस माइट नॉन प्लस। अद्यपि शिकारी जानवरों को पहचानने में एक मतलब अनएक्सपीरियंस, ठीक है, अनएक्सपीरियंस तरह से वो महसूस करता है। सपोज यू आर जस्ट देयर एंड यू आर जस्ट नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एनिमल्स। यहाँ पे दो एनिमल्स को डिफरेंशिएट किया गया, एक हाइना है और एक आपका क्रोकोडाइल है, और दोनों जानवर आपके सामने हैं, बट यू आर जस्ट नॉट एबल टू डिफरेंशिएट, यू आर जस्ट नॉट एबल टू क्लासीफाई दैट विच इज हाइना एंड विच इज अ क्रोकोडाइल। सो यहाँ पे बता कि बीस्ट ऑफ प्रे, अ नॉविस माइट नॉन प्लस, एक ऐसे प्रकार का एनिमल जो दूसरे एनिमल को मारता हो अपने भोजन के लिए, दैट इज अ नॉविस, सॉरी दैट इज अ बीस्ट ऑफ प्रे। अ नॉविस माइट नॉन प्लस, और एक ऐसे प्रकार का व्यक्ति जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं हुआ हो, वह बिल्कुल अचंभित पड़ जाता है, बिल्कुल कंफ्यूज कर जाता है, इज जस्ट नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट विच इज एनिमल एंड विच इज डियर, सॉरी विच इज हाइना और विच इज अ क्रोकोडाइल। सो नाउ the crocodile you always may tell from the hyena, thus hyenas come with merry smile, but if they weep they are crocodiles। यहाँ पे कवि जो है वो बताना चाहती है कि जो हाइना आपका होता है वो हमेशा मैरी स्माइल करती है, वो हमेशा मुस्कुराती रहती है, लेकिन अगर आप क्रोकोडाइल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो क्रोकोडाइल ऐसा कुछ नहीं करता है, वो हमेशा रोते रहता है, बिलखते रहता है। सो हाइनास कम विथ मैरी स्माइल। सपोज इफ यू सी द हाइना, देन डेफिनेटली सी इज ऑलवेज ready for smiling, she always smiles, okay, if someone goes front of the hyena she smiles, but if you talk about the crocodile, then crocodile always, okay, weeps, then we can identify easily that is the crocodile and that is the hyena, students. So now finally we will discuss about the next and the final stanza, that is stanza number 5. The tree chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, is the chameleon you see. Students, here we will see about the chameleon is small.
यहाँ पे जो कैमोलियन है एक बहुत ही छोटा प्रजाति का जीव है, बहुत ही छोटा प्रजाति का जीव है, बिल्कुल एक लिजार्ड के जैसा, एक बिल्कुल छिपकली के जैसा, ठीक है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, यहाँ तक कि उसके बॉडी पे किसी भी प्रकार का कान नहीं है, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उनके बॉडी पे आपका पंख भी नहीं है, विंग भी नहीं है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इज द चैमोलियन यू सी, अगर आप किसी ट्रीज पे देखते हैं तो आप वहां पे ट्रीज पे किसी भी प्रकार का कैमोलियन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वह अपने रंग को क्या करता है, तुरंत वो बदल देता है। तो बदल देता है, सपोज अगर वह ब्राउन कलर का ट्री में बैठा हो तो जो कैमोलियन होता है वह अपने कलर को ब्राउन में ले आता है। अगर वह ग्रीन प्लांट्स में बैठा हो या किसी प्रकार का पत्ती में बैठा हो तो वो ग्रीन कलर का वो बॉडी कर देता है, जिनके कारण से यहाँ पे जो कवि बताई है कि इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्रीज, अगर ट्रीज पे आपको किसी भी प्रकार का लिजार्ड या आपका कैमोलियन नहीं मिल पाता है, इज द कैमोलियन ऑन सी, तो आप वहाँ पे एक कैमोलियन ही देखेंगे, क्योंकि वो अपने बॉडी को कलर चेंज कर देता है। कलर चेंज करने के बाद हमारा ट्री और उनका बॉडी एक जैसा नजर आता है, जिनके कारण से वी आर जस्ट नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट इज ऑन द ट्री और नॉट। So the poets here as explained about the different type of the wild animals, and whatever she has ideas, okay, she has just given all these ideas related to these animals, and we just got about the animals, and we can identify easily some of the animals because of their characteristics or the merits, right? So I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा स्टूडेंट्स।